on Thursday introduced a bill in the Rajya Sabha to make a law for the selection process of a body that runs the elections in the country. अब ये जो नया बिल लाया जा रहा है ये यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बजाय कैबिनेट मिनिस्टर को पैनल में जहां तक रखा जाएगा जो सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की क्यों ना हो। अगर हम बिल की बात करें तो यहाँ पर एक 3 मेंबर पैनल सेटअप किया जाएगा और यहाँ पे सीधे तौर पे जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होंगी और ये पैनल में जहां तक प्रधानमंत्री होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे लोकसभा के। अब ये जो चेंज लाया गया है, ये जो बदलाव लाया गया है, ये ऑपोजिशन पार्टियां जिसके ऊपर सवाल उठा रही है कि एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी यहां पर सरकार की। This is the clear-cut move of the government, Modi government, to make Election Commission as a department of Government of India. Election Commission of India's neutrality is going to be disappear after this election. Because this constitution has been come in accordance with the Supreme Court judgment. That way constitutional by judgment. If you are giving that appointing authority as a government department like thing, then how can you expect neutrality from this Election Commission of India? This is a clear-cut motive to rig the election. We cannot accept it. That's why we have already given an objection. Legislation becomes very difficult here. There is no there is no space for opposition voice. Removing the Chief Justice of India from Election Commission Selection Committee, it was a very important bill. So we raised objection against that bill. John Britta CPIM has given an objection motion. But it was not considered. He called the minister to introduce the bill. So there was no other way to shout and jump to the well and protest against this anti-democratic attitude of the government and also the chair. अब विपक्षी दलों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो विपक्ष की जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश कर रही है सरकार और जहां तक अगर हम एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे निष्पक्षता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो तो मैं देख रहा हूं एक बिल लेकर के आए हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है इलेक्शन कमिश्नर के चयन के प्रोसेस। तो अब अगर पूरा रिगिंग ही कर लीजिएगा, जब आप ही तय करेंगे कि 3 में से 2 सदस्य आप ही होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में, तो मैं तो समझता हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब हम पुराने दिनों की बात होगी कि एक वक्त था जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ करता था। Now BJP government is crossing the limit. BJP government has always been denigrating and misusing the constitutional machineries. Now for the chief election commissioner appointment, how can you do this? They are just subverting the appointment process and they are taking the appointment process under their own control so that they can plant their own men and again denigrate the office of chief election commissioner. We strongly oppose it and it should not happen. We strongly oppose the conspiracy of Bharatiya Janata Party. They are trying to grab the election process of India. They are trying to oust learned Chief Justice of India from the collegium that appoint the Chief Election Commissioner. We are strongly opposing the move of Bharatiya Janata Party. अब बचाव में उतरे हैं बीजेपी के जो आईटी सेल के जो हेड है अमित मालविया। उन्होंने डिफेंड करा इस बिल को और अमित मालविया ने ये ट्वीट पोस्ट करा जहां पर उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जो इस साल मार्च में आई थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा गया था कि 3 मेंबर पैनल कंप्राइजिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई एंड द एलओपी फॉर सिलेक्शन ऑफ द सीईसी एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स वाज रेलेवेंट ओनली टिल द टाइम that the parliament framed a law, यानी जब तक कानून नहीं बन सकता तब तक ये रेलेवेंट रहेगा। अब यहीं पर बीजेपी एमपी हरनाथ सिंह का जब कहना है कि ये बिल नेशनल इंटरेस्ट में लाया गया जहां तक अगर फंक्शनिंग हो इलेक्शन कमीशन की वो स्मूथ हो, वो ट्रांसपेरेंट हो और वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी इस बिल को लाकर। भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये सुचारू रूप से काम करे, पारदर्शिता से काम करे, प्रभावी ढंग से काम करे, त्वरित निर्णय लेने में क्या नाम है समर्थ हो। इस दृष्टि से ये जो बिल लाया गया है ये पूरी तरीके से देश हित में है, निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से और प्रभावी ढंग से काम करने की दृष्टि से ये बिल बिल्कुल सही है। विपक्ष को रोग हो गया है नकारात्मकता का, देश के हित में कुछ भी वो करने के लिए तैयार नहीं, ना ही उनका इस प्रकार का चिंतन है।
अब बीजेपी की तरफ से ये सफाई दी जा रही कि जो बिल लाया गया है ये देश हित में है। हम जारी रखेंगे ये ब्रॉडकास्ट। वी विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक विद मोर न्यूज एंड अपडेट्स।